Shan, good afternoon. Dheeraj, good afternoon. Good afternoon, Utkarsh. Shaurya, good afternoon. Good afternoon, Vishal. Very good afternoon. So, regulated power supply mein the first component was the transformer. We studied transformer. After that, we started with the second component, that is the we studying with the low voltage rectifiers. In the low voltage rectifier, we started with the we said there are further two categories: half wave rectifier and full wave rectifier. In full wave rectifier also there are two categories: center tapped and bridge rectifier. So we finished in the last class, that is on Saturday, half wave rectifier, center tapped and bridge. We completed all those rectifiers in the last class. Now today we will be starting with the next uh, block of the regulated power supply, that is filter. Because the supply that we have got out of the rectifier, the voltage that we have got out of the rectifier, that voltage is a pulsating DC, but what we are constructing is a regulated DC. So what we have got is pulsating DC. Pulsating DC means it consists of AC plus DC. So now our task is to remove the AC from the pulsating DC that we have got, so that we get only DC. How to remove AC? For removing the AC, we're going to use the filter. So now the next heading is filter. Shadaran, good afternoon. Filter. This is the next thing. So क्या है फिल्टर यार? फिल्टर इज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क. हमें पता ही है कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क है ये, ठीक है, जो कि कुछ डिसाइड फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है. दैट्स व्हाट फिल्टर डज. जो हमें चाहिए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज उनको जाने देगा, जो नहीं चाहिए उसको रोक देगा. कैसे हम डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंगली. ठीक है, ठीक है. तो कैसे करेंगे सर फिल्ट्रेशन? क्या मतलब क्या होगा? अभी बनाना मत, ये रफ चल रहा है सब कुछ, ठीक है, अभी मत बनाना. तो मैं गंदा गंदा बनाता हूँ फिर मैं. यहां से एसी आया, ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन हुआ, रेक्टिफायर से बाहर निकला आउटपुट, ठीक. और ये हमारे पास लोड है. लोड में एसी प्लस डीसी आ रहा है. यही सिचुएशन है अभी तक की इतनी सिचुएशन है अपनी. अपन कह रहे हैं हटाओ भाई इसको, हटाओ इसको, कुछ ऐसा करना है कि एसी मिट जाए. तो मैंने कहा यार इसका मतलब यहां बीच में रेक्टिफायर और लोड के बीच में यहां मुझे कुछ ऐसा लगाना होगा कि एसी खत्म हो जाए. वासु गुड आफ्टरनून दीपक. कि एसी खत्म हो जाए. क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ऐसा. तो मैंने सोचा कि एक सिंपल सी चीज कुछ बनाई जाए. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा सर्किट चाहिए, कुछ ऐसा कि जो ये अचीव करने में मदद करे. तो मुझे याद आया जो बिल्कुल बेसिक सर्किट एलिमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उसमें अगर मैं इंडक्टर की तरफ जाऊं तो शायद मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी. क्यों? लेट्स से आई हैव एन इंडक्टर हुज वैल्यू इज एल. ये कॉपी मत करना अभी कुछ भी, ठीक है, ये सारा डिटेल में आना है. मैं आपको बस एक हल्का सा ग्लिम्स देने लगा हूं, क्या घुसने लगे हैं, किस टॉपिक में घुसने लगे हैं, ठीक है. तो कॉपी मत करना, नोट्स मत खराब करना. तो ये आ गया मेरे पास इंडक्टर. मैंने इंडक्टर लगा दिया. सर इंडक्टर लगाने से क्या हुआ? बेटा आपको पता है इंडक्टर की रिएक्टेंस कितनी होती है? ओमेगा एल. So while designing a filter, whether it is inductive filter or it is capacitive filter, what I do basically, I take the inductor and capacitor, both the values to be high. Okay, Gunther, good afternoon. Both the values to be high. So I'm going to take an inductor with high inductance value. So if the inductance value is high, sir, then what is going to happen? If the inductance value is high, can you see the inductive reactance overall will be large? So the reactance here is going to be large. And at the same time, I use inductive filter in the cases in which the load resistance is small. Okay. I use the inductive filter with where the load current is high or the load resistance is small. So why? What is going to happen now? If you see, inductor acts as a short circuit for the DC. I hope you all know that. DC के लिए इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है. DC को इंडक्टर जाने देता है, रोकता नहीं है.
आई होप आप लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं. अगर आप नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट, वो तो खत्म हो गया होगा कब का आपका, पिछले हफ्ते ही, पिछले संडे ही खत्म कर दिया होगा आप लोगों ने केवीएल केसीएल नोडल मैश. देन आई आस्क यू टू स्टार्ट स्टडीइंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, उसके बाद सीधा हम लोग आ गए थे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. उतना तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, ठीक है. सो वहां पे मैंने बताया हुआ है फॉर डीसी इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट. So when the DC will come from here, when the DC current will flow, this will act as a short circuit. So the output DC will be equal to the load DC. So whatever DC I got at the output of the rectifier, the same DC will be available at the load. Agreed? Agreed till here? Okay. So now, but what will happen to the AC? When I'll be doing the analysis for the AC, you know that for AC, inductor will pose some reactance and load will pose some resistance. Now, when the AC will appear, major portion of the AC will drop over here. Very, very small AC will come over here. Why? Because the reactance is high. So the voltage drop will be across the higher resistance value. Therefore, now you see the AC is approximately zero. Not exactly zero, I do agree, but the AC is approximately zero. It will be very small portion of AC that will be reaching. So उस समय भी मेरे से किसी ने डाउट पूछा था, मैंने कहा था तब की तब देखेंगे, आगे बढ़ाऊंगा. So if you see the full wave rectified output is suppose this. After the filter, I hope you do remember I told you the output will be something like this. When someone asked me, sir, why it is not constant DC, I told, wait, when I'll teach at that time, you will come to know. Now you understand why it's not constant DC. Obviously, some portion of AC will be there, but very small portion of AC will be there. That's why I was showing it like this. Although I have achieved the DC. If you do not want a regulated DC, even a small fluctuation will work for your circuit. You can straightforward take it from the output of the filter. But we want regulated DC. We want it to be this. So in the next step from here, we will reach over here. But till then, wait for it. Okay. Good afternoon, Harsh. So I hope you understood the fact that how the filter is working and how I was able to achieve the filter just by one small cute element like inductor. Okay. Clear है ना? अब मुझे यहाँ तक clear है, सारा clear है ना? Clear है. फिल्टर बन गया अपना, फिल्टर तैयार है, बस फिल्टर हो गया. अब इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, वो देखेंगे अभी, बट फिल्टर अपना बन चुका है. ठीक है. नेक्स्ट. Good afternoon, Suman. Good afternoon. I have not decreased RL. Deepak, have you joined the class late? I have not decreased RL. I'm telling you, inductive filter is preferred when the load resistance is small. Okay? If you have a small load, then I'm going to prefer the inductive filter, because in that case, when the voltage division will occur, the maximum voltage drop will happen across the inductor. But if load is large and if the reactance and the load resistance will be comparable or the load resistance is high, in that case, more AC will appear across the load instead of the inductor. So obviously, instead of this, the one I drew, instead of that, I'll be having this. More AC. So I am saying that inductor filter, अभी मैं आगे चल के डिटेल में और लिखवाऊंगा, अभी चिंता मत करो, फिर आएगा ये आगे चल के, ठीक है? Good afternoon, Suman. Good afternoon, Arko. But what I'm trying to tell you is that inductive filter is preferred when the load resistance is small. I know you must be having this kind of a feeling. What if the load resistance is large? Then our filter is not work. Our filter will not work. So wait for some time. Let me finish what I'm telling you. Okay. Give me some time. Vishal, good afternoon, beta. Now, moving to the next thing. Now, the same situation. I have a rectifier. At the rectifier output, I have pulsating DC. That's why across my load, I'm getting AC and DC. I want to stop the AC. I can achieve it. I can achieve it by doing what? By connecting a capacitor in parallel with this. I can achieve it by connecting a capacitor in parallel with the load. Why, sir? How? Again, what I'm going to do,
I'm going to keep my capacitor value high. So as I told you, both in inductor and capacitor, the inductance value and the capacitance value respectively will be high. Because what will happen, we know that the capacitive reactance is going to be 1 by omega C. If C is going to be large, then XC is going to be small. I want XC to be small this time. Why? If capacitive reactance is low, what is going to happen? So let's see what will happen to the DC. You know that for the DC, the capacitor acts as an open circuit. So whole of the DC will be appearing across the load. That is what we want. But what will happen to the AC? If you see the current, I'm only talking about the AC. Okay, DC we have already seen. The current AC current will come from here. The AC current will be having two paths. One is capacitive path, another is the load resistive, the load path. Now what will happen? Whichever path will be giving the minimum reactance or minimum resistance, current is going to follow that path. And as you can see, XC is small, therefore more current, that is most of the AC will flow over here, very small AC will flow over here. And to further increase this effect, that is more AC in the capacitor and negligible AC in the load, I want load resistance to be large. I want load resistance to be large. So if load resistance is large, AC will not go over here. Most of the AC, maximum AC will flow through the capacitor only. Will flow through the capacitor only. Okay. And large value of capacitor means millifarad or microfarad, because millifarad capacitor is really large. Millifarad capacitor बड़ा होता है भाई, 100 millifarad, 20 millifarad is a large capacitor. Even if you see, not even micro, let's say milli, okay? If I put milli over here, can you see the reactance will be in kilo ohms? Obviously, nothing will be flowing through the load. If you logically speak, nothing will be flowing through the load. Okay? Load से कुछ नहीं जाने वाला भैया. So that's why we say that for large load or large load resistance, basically, we use capacitive filter. For small load resistance, we use the inductive filter. I hope सबको यहां तक कहानी समझ आ गई है. फिल्टर सबको समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको डिटेल में समझना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे वो बहुत कुछ पूछेंगे. तो मैंने वही बोला ना कि आपको फॉर्मूला की बुक्स में इतना ही मिल जाएगा बस, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है. तो चलिए वो पढ़ने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं. एंड मोर ओवर, यू नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट एंड कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज. इसी वजह से हम कैपेसिटर और इंडक्टर को फिल्टर सर्किट में यूज कर रहे हैं. अगर इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती तब यूज नहीं कर पाते हम. ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्यू थिंग्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, व्हाट इज अ फिल्टर? इट इज अ, जो मैंने अभी बताया था आपको वही लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी selective network which passes. कर पाए, अभी मैंने आपको बताया एसी हमें रिड्यूस करना है. फिल्टर्स are used at the ripple in the output, in order to reduce the ripple in the output. And in full wave rectifier, the harmonics were starting only from 2 omega naught and then even harmonics, as you have written, 2 omega naught, 4 omega naught, 6 omega naught and so on. यही था, यही था. थोड़ा दिमाग लगा के बताना. फिर चलो आगे चल के बताना, ये भी सुन लो, नहीं समझ में आया फिर बताऊंगा आगे चल के. फिल्ट्रेशन आपको नहीं लगता इंडक्टर वाला सोचना, इट विल बी इजी फॉर यू टू थिंक अबाउट इट. इंडक्टर में फिल्ट्रेशन इजी है फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. क्योंकि पहले तो ओमेगा नॉट भी हटाना है. दूसरी चीज, जब आपको फिल्टर डिजाइनिंग करनी है, एक्सेल शुड बी लार्ज. एक्सेल शुड बी लार्ज. सो एक्सेल इंडक्टर के केस में ओमेगा नॉट एल होगा, क्योंकि उसके ऊपर वाले तो बड़े ही आएंगे ओमेगा नॉट एल से. लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 ओमेगा नॉट एल से शुरू होगा. सो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर आई हैव टू डिजाइन एक्सेल फॉर 2 ओमेगा नॉट एल.
बट इन हाफ वेव रेक्टिफायर आई हैव टू डिजाइन एक्सेल फॉर ओमेगा नॉट एल। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 टाइम्स है हाफ वेव रेक्टिफायर के। इट विल बी इजी टू डिजाइन इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज एक्सेल वैसे ही लार्ज हो रहा है, खुद ही डबल हो रहा है। फिल्टर 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, 6 omega naught, a filter should remove 2 omega naught, consists of, in regulated power supply, a filter consists of a large capacitor next वो पॉइंट लिख दो। नेक्स्ट लार्ज इंडक्टर मतलब फ्यू हेनरी। नेक्स्ट इंडक्टर मतलब फ्यू हेनरी एंड a large inductor। लार्ज इंडक्टर मतलब फ्यू हेनरी। नेक्स्ट वो पॉइंट लिख दूं कि रहने दो जो आपको बताया इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन, लिख देता हूं। वी यूज capacitor because a capacitor does not allow the sudden change in voltage and we use capacitor because capacitor does not allow the sudden change in voltage and language गलत हो गई, inductor सही हो गया, सही है। we use इसके लिए, फिर इसके लिए we use inductor because an inductor does not allow the sudden change in current। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना था? रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कितना था? पलटो पलटो पेज पलट के देखो। 1.21 0.48 ठीक है। 0.483 was the ripple factor for the full wave rectifier। तो फिल्टर लगाने के बाद रिपल फैक्टर कितना होता है? We say that it lies between 0 to 0.483। Now it depends basically how large the value of the inductor and capacitor we have taken and whether I'm using a small load with the capacitor or with the inductor. Depending on that also it will vary. It will vary. Okay. So you can see with a filter 0 to 0.483 for full wave जो आपका इंडक्टिव। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं पहले फिल्टर में, इंडक्टर फिल्टर। जो आपका इंडक्टर फिल्टर है या इंडक्टिव फिल्टर है वो हम लोग ईएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। गेट में कुछ ज्यादा आने के वहां से चांसेस नहीं होते हैं, गेट में चांसेस होते हैं कैपेसिटिव फिल्टर से आने के। तो
इसलिए मैं इंडक्टर फिल्टर में ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, जितना मुझे काम का लगता है मैं करवाऊंगा। कैपेसिटर फिल्टर थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, बिकॉज वो जो है वो पूछा जा सकता है गेट ईएससी दोनों में और मेंस में भी आ सकता है। इंडक्टर फिल्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको थोड़ा जल्दी खत्म करें, ठीक है। इंडक्टर को हम लोग चोक भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज चोक फिल्टर, ठीक है। चोक फिल्टर लिखो, ट्यूब, ठीक है, चोक फिल्टर लिखा हो तो समझ जाना। देखो बेटा, यहां पे क्या हुआ, हमें एसी मिली, लेट्स से स्टेप डाउन एसी मिल रही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर नहीं बनाया, बनाना है बना लो, या पूरे सर्किट को फिर ट्रांसफार्मर मान लो, या वी एसी मीन्स लगा दो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ओके। रेक्टिफायर में गई, रेक्टिफायर से बाहर हमें मिला एसी प्लस डीसी, जो भी समझाया था आपको, ठीक है, ये मिला। फिर मैंने क्या किया, और ये लोड था, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार अब यहां पे इंडक्टर लगाते हैं, बिकॉज मुझे फिल्ट्रेशन करनी है। और हमको यहां पे मिला, कौन से कलर से लिखेंगे, इससे लिख देते हैं, हमको यहां पे मिला वी आउटपुट। और वी आउटपुट क्या होना चाहिए अब, डीसी एसी अब रुक जानी चाहिए, ये है मेरा, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अब पूरा समझा चुका हूं, तो मैं लिखता जाता हूं, ठीक है। इंडक्टर value is large, value should be, is the inductor value should be inductor value should be large, so that its reactance is large at what, ripple frequency। सर रिपल फ्रीक्वेंसी पे क्यों देख रहे हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी का क्या है बेटा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट। अगर रिपल फ्रीक्वेंसी पे ही लार्ज हो गया, तो फिर 2 ओमेगा नॉट पे तो होना ही है, फिर 4 ओमेगा नॉट पे तो होना ही है। आई बात समझ में। इसलिए हम लोग रिपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि रिपल पे हो गए तो बाकी सब तो फिर ऑटोमेटिकली फिल्टर हो ही जाएंगी 100%। सो वी शुड बी कंसर्न ओनली अबाउट द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसीलिए हम लोग सबसे छोटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में लेके वरिड है, उसी पे हम एनालिसिस करेंगे, आगे तो ऑटोमेटिकली हट ही जाना है उन सब में। समझ में आया, समझ में आया। तो इसकी रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की, वो लार्ज होनी चाहिए रिपल फ्रीक्वेंसी पे, और लार्ज होने के साथ साथ आरएल से भी काफी बड़ी होनी चाहिए, लार्ज होने के साथ साथ आरएल से भी काफी बड़ी होनी चाहिए। सो इंडक्टर वैल्यू शुड बी लार्ज सो दैट इट्स रिएक्टेंस इज लार्ज at ripple frequency and much greater than RL, much greater than RL to reduce the AC should be greater than RL, ओमेगा एल आरएल से बड़ा होना चाहिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है चाहिए, and in
full wave rectifier ripple frequency is 2 omega naught, therefore full wave rectifier में 2 omega naught L RL से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो किस केस में अचीव करना आसान है, फुल वेव के केस में, क्योंकि ओमेगा नॉट नहीं है, क्योंकि ओमेगा नॉट नहीं है। यही बात हम लोगों ने करी थी, यही बात हम लोगों ने करी थी। ये तो हमने लॉजिकली बात कर ली, एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, है ना। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द बेटा यहां पे जो वोल्टेज आएगी इट इज VAC एंड लेट्स कॉल इट एज VDC, ठीक है। VAC प्लस VDC लिखते हैं वोल्टेज को। सो व्हाट विल बी V आउटपुट? V output will be, for the AC I'm talking about, okay, for the AC I'm talking about, V output will be VAC upon RL plus JXL into JXL into RL, sorry लोड पे ले रहे हैं, into RL, ठीक है। I'm going for the voltage division rule. सो AC की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि DC में तो सीधा आ गया, AC के लिए कर रहे हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा? VAC अपॉन RL प्लस JXL मल्टीप्लाइड बाई RL। Now I want the magnitude of V naught. So what will be the magnitude of V naught? Magnitude of V naught will be VAC upon under root of RL square plus XL square into RL. And as XL is far greater than RL, therefore mod of V naught can be approximately written as VAC into RL divided by, देखो बेटा अगर XL RL से बहुत बड़ा है तो RL स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा XL स्क्वायर की टर्म में, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, क्या बचा? XL, ठीक है यहां तक। And again XL is far greater than RL, this will be approximately 0, this will be approximately 0। आ गया समझ में? ओके, यही हमने पहले लॉजिकली भी बात करी थी। तो चलिए इस कहानी को लिख भी देते हैं। Therefore approximately whole of the AC voltage काफी परेशानी का मुद्दा बन गया आज। मैं रोज ही इतना टेढ़ा लिखता हूं कि आज इतना टेढ़ा लिख रहा हूं। ये वाला सही है, ये ज्यादा टेढ़ा हो गया हुआ है, ये वाला पोर्शन। मैं रोज इतना टेढ़ा लिखता हूं कि आज ज्यादा टेढ़ा हो रहा है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, जो ज्यादा कुछ टेढ़ा हो रहा है यार आज। ये देखो भाई कैसे जा रहा है टेढ़ा, कैसे कैसे लाइनें जा रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे ऊपर जा रहा है मैं अपना टैब भी ऐसे करता जा रहा हूँ। मैं टैब भी टेढ़ा कर दे रहा हूँ कि मैं टेढ़ा जाऊंगा तो टैब टेढ़ा होगा तो सीधा आ जाएगा, ठीक है ना। पता नहीं आज क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। पर नोट साफ बननी चाहिए, तुम्हें पता है मैं इस चीज से बहुत ध्यान देता हूँ। मैं बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स, एक एक डायग्राम एकदम साफ सुथरी, क्योंकि ये मैं देखो जो चीजें मैंने एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व करी वो जब मैं टीचर बना मैंने इंप्लीमेंट करी। हमारे कुछ टीचर थे जब पढ़ाते थे इतना गंदा लिखते थे बोर्ड पे कि तुम एक सेकंड, अगर तुम वो लिख रहे हैं उस समय तुमने उनको लिखते हुए देख लिया तो तुम्हें पता ही ये लिखा है। अगर तुम एक सेकंड अपनी कॉपी में नीचे कुछ लिख रहे हो और वापस मुड़े तो समझ में नहीं आता था बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने। और कुछ यहाँ पढ़ाया, मतलब ऐसे हमारा, मुझे याद है अभी बोर्ड ऐसे होता था, तो यहाँ पे लिख रहे हैं मान लो XL इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L, उसके बाद अचानक स्टार्ट हो गया देखो XC 1 बाई ओमेगा नॉट C होगा, देखो RL जो है वो बड़ा होगा। पूरा हौच पौच हुआ होता था बोर्ड। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द बोर्ड एट दैट टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड कौन सा पॉइंट कहाँ चला गया, और फिर समझ नहीं आता था। फिर हमारे एक दो टीचर थे जो बहुत साफ लिखते थे, एक ही टीचर थे जो बहुत साफ लिखते थे। वो जब साफ लिखते थे उनकी प्रेजेंटेशन बोर्ड पे साफ रहती थी, हर जगह बिल्कुल सिमेट्रिकली चल रहे हैं, तो समझ में आता था अच्छी तरह से। देन आई डिसाइडेड किया जब पढ़ाऊं, चलो उसमें ये वाला होता है, मतलब ऐसे ग्रिड वाला उसमें एक आता है ऐसे करके, मैं वो ग्रिड वाला लेके लिखता हूँ क्योंकि उससे पूरी सिमेट्री बनी रहती है कहाँ पे क्या लिखना है। और लास्ट में आप बटन दबाओ तो ग्रिड गायब हो जाते हैं,
लास्ट में ग्रिड गायब हो जाते हैं, मैं सारे ग्रिड फिर हटा देता हूँ, समझ रहे हो, फिर वो लाइन लिखा है, मैं करता हूँ संजय, कैपिटल वी आउटपुट नहीं लिखा है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। फिर वहां के लिए कर रहा हूं, खत्म हो गई है। Therefore, approximately whole of the AC voltage will appear across the inductor and negligible no in AC in output. क्या लिख दिया हमने हर को, ठीक है। Approximately whole of the AC voltage will appear across the inductor and negligible AC voltage will appear across RL because XL is far greater than RL. इन हटा दिया सर, नो एसी इन आउटपुट, नो एसी इन आउटपुट, हाँ नो एसी इन आउटपुट, यही बात करते, सही कह, ठीक है। नेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा इस पे, होल ऑफ द डीसी वोल्टेज, ये जो मैं लिख रहा हूं ये बस आप जब रिवीजन करेंगे, शायद थोड़ी देर के बाद कभी भूल गए हो कि मैथमेटिकली क्या था, तो इसलिए मैं लिख देता हूं, रिवीजन का टाइम इजी रहेगा आपको। होल ऑफ द डीसी वोल्टेज will appear across RL because for DC current, for DC current, for DC सिंपल लिख देते हैं, वोल्टेज करंट कुछ भी, because for DC इंडक्टर को पूरा में होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ये छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, बाकी एक पॉइंट विद रेक्टिफायर। तो एक सिर्फ पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, क्या देखना चाहता हूं, तो देखें क्या बना रिपल फैक्टर का, ओके। तो मैं रिपल फैक्टर देखना चाहता हूं, लेट्स डू इट। सर्किट बना रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का कल मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिया था, तुम लोगों को याद है, कल या परसों किया होगा जब सेंटर टैप पढ़ रहे होंगे। सो फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमारे पास याद है वोल्टेज कितनी आई थी आफ्टर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, 2 Vm by pi minus 4 Vm by pi summation k running from minus infinity to summation running from k equal to E1 cos k omega naught t upon k plus 1 into k minus 1, याद है, ठीक है। तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेंगे, मैंने बोला ओमेगा नॉट के लिए करना है, ओमेगा नॉट का हो गया, बाकी तो हो ही जाएंगे। सो इट इज माइनस, और मैक्सिमम पावर सब कुछ फंडामेंटल में ही होगी, -4 Vm अपॉन 3 पाई, क्योंकि k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, 2 डाल दो, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आया 3, मैंने ये 3 बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, कॉज ऑफ k ओमेगा नॉट टी, व्हाट इज k, 2, क्योंकि पहला लिया है 2 ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और ये आर एल। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, वोल्टेज वी नॉट में, कंप्लीट वोल्टेज वी नॉट कितनी आएगी। सो नाउ यू सी व्हाट इज रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर आर होता है बेटा, आई
RMS डैश अपॉन IDC। तो अब पहले करंट निकालते हैं, कितनी होगी, स्टार्ट करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। लोड में करंट निकाल रहा हूं मैं। तो पहले अप्लाइंग डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा। अगर खाली ये कोई दोनों है ना, ये तो नेटवर्क का ही है। अच्छा, आज जो है आपकी, कल आई एम सॉरी, मैं आपकी कल साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस की क्लास जो है कल शाम को जो थी नहीं ले पाया। आज मैंने रीशेड्यूल करी हुई है, शाम को 6 बजे से है। ठीक है, आज शाम को 6 बजे से आपकी साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस की PYQ वाली क्लास है। कल मैं नहीं ले पाया था, आज कर दी हुई है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है आपने किए होंगे, वही साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस लिए याद आ गया। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्स है। आई एम गोइंग फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले ये हटाया, डीसी लगाया, इसकी वजह से करंट क्या होगी, 2Vm by पाई डिवाइडेड बाई RL। क्यों? क्योंकि इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट एक्ट करेगा, तो 2Vm by पाई RL विल बी द करंट फ्लोइंग इन दिस। सो IDC will be DC voltage upon resistance value. Let's call it as equation number 2. अब लगाते हैं AC। मैंने क्या किया, पहले DC लगाया, ये हटाया, DC करंट निकाल ली। अब मैंने ये शॉर्ट कर दिया, अब ये लगाया, अब मैं यहां से करंट निकाल रहा हूं। करंट क्या होगी, AC वोल्टेज अपॉन RL प्लस JXL, द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस विल गिव मी द करंट। So it will be VAC upon RL plus J, because I want RMS dash will be Im by root 2. What will be the peak value of the AC? Im by root 2, because IRMS dash क्या है, जो खाली AC है उसकी RMS वैल्यू। तो आप AC की पीक वैल्यू निकाल लो, वहां से निकाल लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तभी मैं मैग्नीट्यूड पे आ गया, मुझे खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, IM निकालना है मुझे, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड पे शिफ्ट हुआ। ओके, सो RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, and you can and you know that I can write it as mod of VAC upon XL. Good. So IAC peak, so IAC mod peak is equal to mod of VAC peak, मतलब ये नॉर्मल IAC आया है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द पीक वैल्यू, तो VAC पीक अपॉन XL हो जाएगा, है ना, अपॉन XL डैश विल बी IM, दैट इज जो AC की पीक वैल्यू है, डिवाइडेड बाई रूट 2, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज IAC पीक की वैल्यू डाल दो। ठीक है, कितनी है VAC पीक की वैल्यू कितनी है, 4Vm by 3 पाई। RMS dash will be equal to upon 1 by XL। XL किसके बराबर होता है, गुड सत्यम, शाबाश बेटा, शाबाश। इट इज 2 ओमेगा नॉट L बेटा, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट नहीं। हैड इट बीन अ हाफ वेव रेक्टिफायर देन आई वुड हैव रिटन इट एज ओमेगा नॉट। एज इट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, माय फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा नॉट। बाकी जिन लोगों ने एक्सेल वैल्यू ओमेगा एल बताई है, दैट्स फाइन। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट एज ओमेगा नॉट, यू जस्ट राइटिंग इट एज ओमेगा एल। यस, ऑफ कोर्स इट इज ओमेगा एल एंड ओमेगा इज 2 ओमेगा नॉट, दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। ओके बेटा, तो ये हमारा यहां तक आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 2 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई इंटू Vm कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये बचा, नीचे का बचा 3 पाई ओमेगा नॉट L। ये मेरे पास IRMS डैश आ गया। तो इक्वेशन 1, रिपल फैक्टर विल RL बाई रूट 2 बचा, RL बचा। द RL छोटा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू
filter provides for inductor filter. Inductor filter is important to use a full wave rectifier with हमारे एलिमेंट्स आइडियल हुए, अगर नॉन आइडियल एलिमेंट्स हुए तो डीसी वोल्टेज कितनी आएगी? नहीं बताना। 2 Vm/pi माइनस IDC इंटू आर। नॉन आइडियल एलिमेंट्स में वैसे भी यार फुल वेव रेक्टिफायर में 2 Vm/pi थोड़ी ना मिलती थी हमें। फुल वेव रेक्टिफायर में भी तो हमें नॉन आइडियल एलिमेंट्स के केस में IDC इंटू आर मिलती थी, मतलब 2 डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, सेंटर टैप की लिख रहा हूं, प्लस हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेंटर टैप की अगर बात कर रहा हूं तो ठीक है। आर क्या होता था? RF प्लस RSW/2 ये होता था। पर अब आप देखो बेसिकली बेटा है हो क्या रहा है, इस वाले का ले लेते हैं केस। तो अब इंडक्टर की रेजिस्टेंस में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगा रहे हो तो इंडक्टर तो नहीं यूज करोगे, क्योंकि इंडक्टर तो बल्कि है, टर्न्स ही है भाई उसको। दूसरा महंगा, कॉस्टली। कैपेसिटर में वो सब नहीं होगा। कैपेसिटर में थोड़ा ना वायर में से करंट घूमती हुई जा रही है और पावर डिसिपेशन देती हुई जा रही है। समझ में आया? तो इसलिए हम इंडक्टर को प्रेफर नहीं करते। ठीक है, जिंदगी में कभी भी कोई पूछे इंडक्टर प्रेफर क्यों नहीं हो रहा, कॉस्टली एंड बल्कि, दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टर फिल्टर। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, जो कि अब समय लेगा। कैपेसिटर फिल्टर लंबा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कल कल क्या ट्यूसडे, आई थिंक ऑन वेडनेसडे विल बी एबल टू फिनिश अवर फिल्टर्स, और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने जीना डायोड में। ठीक है, तो आपका बोरियत वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू कैपेसिटर फिल्टर। IAC प्लस IDC, फिर वो कैपेसिटर इसमें डिवाइड हुई। मैंने आपको ऑलरेडी वो चीज पूरी समझा दी हुई है। अबे बस करो क्लैपिंग व्लैपिंग, क्या चल क्या रही है, मैंने अभी देखा 110 111 बस। सो दिस इज कमिंग एज V आउटपुट, V आउटपुट, V आउटपुट। चलो मैं उठ के सैर करके आता हूँ थोड़ी देर, तुम अपना आगे खेलने वाला काम कर लो, है ना। तुम लोग कर लो ताली बजाने वाला काम, मैं बाद में आता हूँ। चलो अब देखो समझो अब इसको। ठीक है, ये हो गया, अब खत्म हो गया। जो कहानी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है उसकी अगर हम बात करें तो ये है, लिखते थे, बाय कनेक्टिंग in parallel to RL, in parallel to RL, the AC component can be minimized। कैसे, क्यों, ये मैं आपको, छोटा होगा एट रिपल फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है रिपल फ्रीक्वेंसी क्यों देख रहे हैं, मैं पिछले केस में समझा चुका हूं। मतलब 1/ωc बहुत छोटा होना चाहिए R से।
In half wave rectifier, ripple frequency is omega naught. Therefore, 1 by omega naught C should be very very less than RL. मैं तो 2 आ गया नीचे, आधा हो गया सीधा का सीधा. AC करंट कितनी होगी? This is AC load. इन दोनों में डिवाइड होगा. So I'm using the current division rule. This will be IAC the other branch resistance जिसके लिए हम निकाल रहे हैं. ठीक है, नेटवर्क में देख लेना, सारा पढ़ाया हुआ है. जब आप लोग जाओगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस वाले टॉपिक में नोडल एनालिसिस के बाद वहां पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला. ILAC is IAC upon RL minus GXC into minus GXC. But what minus GXC will be XC. आपने देखा कि हमारा जो XC था वो RL से बहुत छोटा था. XC जो था वो RL से बहुत छोटा था. इसको RL ही कर लो, है ना, RL ही कर लो, RL लिखा हुआ. तो XC जो था वो RL से बहुत छोटा था. अब क्योंकि XC RL से बहुत छोटा, तो डिनोमिनेटर में खाली RL बचा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, RL आ गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर बहुत बड़ा है. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0. इसका मतलब लोड में से अप्रोक्सीमेटली 0 AC करंट गई, तो AC वोल्टेज ड्रॉप 0. इसका मतलब यहां पे वोल्टेज 0 नजर आई, AC वोल्टेज 0 नजर आई. क्लियर है? ये तो हो गया AC की कहानी. DC की कहानी, फॉर DC लिख देता हूं. तो आप जैसा कि बोलते हैं DC के लिए कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटी रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा. एंड and almost all the AC will flow the capacitor and DC capacitor acts as an open circuit. Therefore, all the DC will flow. वर्किंग का क्या प्रोसीजर है वो सब तो खत्म हो गया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट पेज में साफ साफ कर विद पूरा डिटेल में इसका एनालिसिस का कब थ्रू आर. ये आपका कैपेसिटर है, मतलब लगाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर. क्या ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, 3 चीजें लग चुकी हैं ऑलरेडी हमारी सर्किट में. V इनपुट पे जो वोल्टेज नजर आएगी दैट विल बी. अब हमें देखना है होगा क्या. बनाना मत, जो मैं बनाने लगा हूं बनाना मत इसको भी. जो स्टेप डाउन होके यहाँ पे वोल्टेज मिली थी AC, मैंने वो बनाई है. अब क्या होगा ध्यान से देखना. जब डायोड चार्ज होगा टिल द पीक वैल्यू, तो क्या होगा, ये ओवरकम करनी होगी. तो इसमें उतना जा नहीं रहे, जरूरत नहीं है, इनपुट के बराबर है. कैपेसिटर Vm और ये वैल्यू Vm के नीचे रिवर्स बायस हो गया डायोड, रिवर्स बायस हो गया डायोड. मेरे कैपेसिटर को ये पाथ मिला डिस्चार्ज होने के लिए. पहले तो चार्ज हो रहा था, अब ये ओपन हो गया. अब कैपेसिटर इस रेजिस्टर से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ. अब कैपेसिटर इस रेजिस्टर से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कैपेसिटर फिल्टर जब हम यूज करते हैं तो लोड RL की वैल्यू लार्ज होती है, स्मॉल होती है, हाई होती है, हाई होती है. ठीक है,
पे भी देखो लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, छोटा कैपेसिटर लेंगे हम लोग, देखो लिखा हुआ छोटा। अभी तो पढ़ाया, स्टार्टिंग में भी क्लास के बोला कि एल और सी दोनों बड़े लेंगे, है ना, क्लास की स्टार्टिंग में भी बोला एल और सी दोनों बड़े लेंगे, समझ में आया? आर एल इंटू सी, इट विल बी वेरी लार्ज. So the time constant will be very, very large. Hence, the discharging will be very slow. आपके समझाने की थोड़ा सा इससे कर रहा हूं, अदरवाइज और ऊपर तक लेना था इसको. अब इनपुट वोल्टेज वापस ऊपर आ रही है, एक टाइम आएगा जिस टाइम पे फिर से जो मेरी इनपुट वोल्टेज है वो कैपेसिटर के ऊपर निकल जाएगी. अब ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी, फिर से कहां तक? वी पीक तक. फिर से ये डिस्चार्ज होगा. आ रहा है समझ में सबको बेटा? T1 से T2 की ड्यूरेशन में ये डिस्चार्ज हुआ, तो इसको डिस्चार्ज टाइम इंटरवल बोल दो. यहां से यहां तक डिस्चार्ज टाइम इंटरवल है. T2 से T3 ये क्या हुआ? चार्ज हुआ. T2 से T3 ये क्या हुआ? चार्ज हुआ. इसको टी चार्ज बोल दें. फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज. ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा. ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है. के बाद ये है. क्यों सर? बिकॉज ये तो जीवन में सिर्फ एक ही बार होना है. तो हम मानते हैं हमारी वेवफॉर्म ये है, यहां से शुरू हो रही है. आप एक्सिस यहां ले लो इसकी, मतलब ये ऐसे, ये जो रेड वाली लाइन है ये वाली, इसको आप एक्सिस मान सकते हो. जो वी इनपुट वाली है यहां से मान लो वो एक्सिस, कि पीछे से आया फिर एक्सिस फिर ऐसे. समझ में आया? समझ में आया? Consider it approximately linear. क्या कि ये स्ट्रेट लाइन होगा. If you see, when the capacitor will discharge through RL, what will be the capacitor voltage? VCT. VCT इतना पता है, चार्ज है इनटू पड़ा नेटवर्क, e to the power minus t by tau. VCT will be V naught into e to the power minus t by tau, है ना? इतना पता है नेटवर्क. जिन्होंने नहीं पढ़ा नेटवर्क, आपको कुछ नहीं पता. जिन्होंने नेटवर्क पढ़ा ट्रांजिएंट बेसिक इक्वेशन, RL RC नॉर्मल. So now tau लार्ज है. अगर tau लार्ज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट into 1 minus t by tau. Higher components neglected because it is large. So you can see this is a linear equation. So capacitor discharge will be a linear equation if tau is large. It will be a linear equation if tau is large. Larger tau, better with the approximation, है ना? इस तरह से अपना जाएगा. बाकी मैं आपका यहाँ पे ये पॉइंट लिख देता हूँ, कौन सा कलर यूज करने को छोड़ा है हमने. मस्त लिंक. This 0 to Vm process will happen only once. Therefore, ये सिर्फ एक बार होगा. Therefore, the 0 to Vm observation, हमने ये एक्सिस बना दी, ये वी इनपुट ये 0 है, यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लो. या फिर एक्सिस यहां पे बना दी, यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लो कि पीछे से आ रहा है और चल रहा है. ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट. tau is large और चार्ज. चलिए वापस आते हैं, यहां तक थे हम. इसके बाद अब लिखते हैं, मैंने समझा दिया आपको, पहले एक दो लाइन लिख. फॉरवर्ड V
कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी स्लोली। इसके बाद मैं आपको बाकी लिखवाता हूं आर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ये अब बनेगा, ये बना लो जल्दी से फिर इसके बाद मैं आपको बाकी लिखवाता हूं। फिर ये लिखना है। कोई बेटा अभी भी कॉपी कर रहा है? तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये वोल्टेज आई है, इस वोल्टेज को हमने कह दिया दिस वोल्टेज इज Vm माइनस VR, मतलब VR मतलब रिपल वोल्टेज। भाई ये देख रहे रिपल, इतनी तो रिपल बची है, रिपल वोल्टेज। ठीक है, तो VR से ये नीचे आता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट लूजेस द वोल्टेज VR, दैट इज रिपल वोल्टेज। अगर ये बिल्कुल लूज नहीं करता तो कांस्टेंट डीसी मिल जाती, रिपल खत्म हो जाती। जितना लूज कर रहा है उतनी रिपल वोल्टेज आ रही है। आगे समझ सबको? ये बात क्लियर होगी? दूसरी चीज, अगर आप चार्जिंग टाइम कांस्टेंट देखो तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो कैपेसिटर का यहां से है, और RF और RSW बहुत छोटे हैं, टेंडिंग टू जीरो है, तो टाइम कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम। दैट्स व्हाई ये बिल्कुल इस प्लॉट को फॉलो कर रहा होता है, डिले नहीं आ रहा होता, बिल्कुल साथ साथ इसके ऊपर चल रहा होता है। ओके, जरूरत नहीं थी, ऐसे बता दिया मैंने, चलो ध्यान में आ गया। चलो कहानी लिखते हैं, पहले कहानी लिखते हैं जीरो से लेकर T1 तक की। कहानी आई T2 bias. In this period again diode becomes power input. This process and very slow discharging keeps on repeating. ठीक है, तो जो कुछ मैंने आपको समझाया सारा लिख दिया, कि अगर आप भूल भी जाओ थोड़ी देर के बाद कभी कॉपी रिवाइज करो, सो एवरीथिंग शुड बी इन योर नोट्स ताकि आपको नोट से आराम से सब कुछ समझ में आ जाए। चलें आगे। इक्वल टू 1 डिस्चार्जिंग, समझ? is very slow, that is therefore दोनों बार इक्वेशन आई वोल्टेज, बिकॉज जो VC की वोल्टेज है वही तो V0 की वोल्टेज है, जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वही तो V0 होगी। तो ये हमने येलो वेवफॉर्म बनाई थी VC की, अब ये ताकि रिपल बहुत कम हो। ठीक है, Vm है, तो अपर पीक है, पीक, तो आउटपुट में पीक टू पीक वेरिएशन कितनी है? रिपल वोल्टेज। यहां तक आपको हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर का पूरा फंडा समझ में आया। अब आपको समझ में आ रहा है रिपल क्यों, जो AC इतनी ज्यादा थी वो कैसे कम हो जाएगी फिल्टर के लगने से। अब आई थिंक क्लियर हो रहा है कि वो कांस्टेंट DC की तरह आ गया, इट इज कमिंग लाइक अ कांस्टेंट DC।
चलिए अब फर्स्ट कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं निकालने वी आर की वोल्टेज कम हो रही है, मींस कैपेसिटर इज लूजिंग द चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो कैपेसिटर जितना चार्ज लूज कर रहा है वो सारा का सारा फ्लो कर रहा है रेजिस्टर आरएल में से। तो मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग whatever amount of charge is lost by the capacitor, the same amount of charge has flown through the resistor. Law of conservation of charge, law of conservation of charge। ठीक है, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग के टाइम कैपेसिटर ने कितना चार्ज लूज किया? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो सपोज चार्ज Q2 था पीक पे, फिर Q1 रह गया। बेसिकली डेल्टा Q इज C डेल्टा V। Q2 माइनस Q1 विल बी C इंटू V2 माइनस V1, यही होता है फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू CV, डेल्टा Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। Q2 के टाइम जो वोल्टेज थी, Q1 के टाइम जो वोल्टेज थी, सिंपल सी बात। ड्यूरिंग डेल्टा V कितना होगा? यहां से यहां तक चेंज इन वोल्टेज कितना है? VR, है ना? VM माइनस VR, दैट इज VR। समझ में आ गया? डेल्टा Q इज इक्वल टू C V फ्रॉम, अब दूसरा केस ले रहे हैं, फ्रॉम T1 टू T2 सप्लाईज the amount of charge supplied to RL during the discharging interval कितना होगा? एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू RL, मतलब डीसी करंट। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ फ्लो थ्रू RL इंटू टी डिस्चार्ज। ठीक है, आगे dt is t discharge, delta Q by law of conservation of charge during the discharging interval, the charge lost by the capacitor सेकंड और थर्ड हैव मेड इट अ हैबिट। आपको ये ऑन सेटअप वगैरह ऑफलाइन क्लास होती थी, तो ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे लेट आते थे तो उससे क्या होता था कि जैसे मेरा ये बोर्ड था, बच्चे सामने है, मेरे इस साइड दरवाजा होता था, तो यहां से बच्चा घुसता था, सारे बच्चे मुझे देख रहे, अचानक टेंशन उस पर चली जाएगी, फिर उसको देखेंगे, फिर उसको सीट तक बिठाएंगे, फिर जब वो बैठ जाएगा फिर मुझे देखेंगे। वो होता ही है, कंसंट्रेशन खराब होती है बच्चों की। तो ऑफलाइन में तो मैं क्या करता था, अगर मान लो 8 बजे क्लास है, 8:05 पे दरवाजा बंद कर, 3 दिन ऐसा करता था, सब बच्चे टाइम पे आना शुरू हो जाते थे। उनको पता में मैंने मान लो कुछ समझा, 2:05 2:10 पे आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स, यू आर अटेंडिंग द क्लास एवरी डे, बट यू आर लिटिल, तो बैठ जाओ। आपकी जो बिगेस्ट कंपटीशन है वो अपनी लेजीनेस के साथ है, आपको जो आदत है चीजें टाल देने की, वो सब कुछ करने की। मैंने कहा बात तो सही है वैसे, इट मेक्स सेंस, बेसिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। टी नॉट इंटू टी नॉट बाई सी, वोल्टेज का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल वोल्टेज कितनी आई थी, बट तो अब से मेरी पीवाईक्यू की क्लास भी है 6 से 8, फिर रात को 9 से 10 फिर क्लास है, सो आई विल आल्सो गेट टायर्ड। मिलते हैं फिर कल। बाय 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 बेटा, थैंक यू, बाय।